دیکھیں 28 سال ہو گئے، ہمیں آج تک کسی نے رپورٹ نہ دی ہے. ایک دفعہ ہوا تھا کہ بہت شور مچانا، اور اچھے وقتوں میں. ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے نا، ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے. ہاں ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے. تو انہوں نے ہمارے ایک ڈاکٹر آئے، ان کے سامنے عمران خان کا وہ ہم نے کہا تھا ٹیکہ کوئی نہیں ان کو لگائے گا، اور اگر بلڈ لینا ہے تو ہمارے اپنے ڈاکٹر لیں گے. تو ہمارے اپنے ڈاکٹر وہاں پہ تھے، ہم بھی جیل میں کیس کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ان سے ملاقات بھی ہوئی ہمارے ڈاکٹر اور پیمس کے ڈاکٹر سے. تو جب ڈاکٹر فیصل آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب وہ بلڈ لے لیا ان کا، تو جیل انتظامیہ نے کہا کہ ہم آپ سے یہ بلڈ آپ شوکت خانم میں نہیں لے کے جا سکتے، یہ ہم لے کر جائیں گے، یہ پیمس میں جا کے ٹیسٹ ہوگا، آپ اس کو بالکل لے کے نہیں جا سکتے. ادھر سے ڈاکٹر فیصل سے وہ فائل لے لی گئی تھی. انہوں نے پھر ذرا تھوڑا سا ریزسٹ کیا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہے کہ ہم آپ سے رپورٹ شیئر کر لیں گے. تو ایک ڈاکٹر پیمس کی ٹیم کے ساتھ پیمس گئے، اور انہوں نے رپورٹ دی کوئی نہیں تھی، صرف وہاں پہ دکھا دی تھی. یاد رکھیں. تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ رپورٹ دیکھیں 3-4 ہاتھوں کے علاوہ یہ رپورٹ کسی کے ہاتھ میں جا نہیں سکتی. 2.5 سال میں آج تک ہمیں کسی وقت بھی رپورٹ نہیں ملی. میں آپ کو یہ بتا دوں لیک انہوں نے خود کی ہے، نہیں تو 3-4 جو ہاتھ ہیں اس وقت تک سسپینڈ ہو کے نکالے جا چکے ہوتے پین سے. کیا وجہ تھی؟ آج انہوں نے کیونکہ انہوں نے چھپا کر رات کو لے کے گئے، یا یہ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ کچھ ہو نہ جائے. لیکن لیک کیوں کی؟ ہمیں کیوں نہیں بتا دیا؟ ہمیں نہ پتا چلا کہ ہاسپٹل لے کے گئے. ہم بھی کس سے پوچھ رہے تھے؟ کوئی جرنلسٹ ہمارے سے پوچھا تھا، ہم ان سے پوچھ رہے تھے آپ کو کوئی خبر ملی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن آ سکے. ہم کبھی لائر کو فون کر، ہمارے دن نکل جاتے ہیں یہ پوچھنے میں کہ کسی کو خبر آئی ہے. سچ اور جھوٹ کے اندر فرق نہیں پتا چلتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کس چیز پہ یقین کریں. ایک جرنلسٹ نے ہمیں بتایا، جو فون کرتے ہمارے سے پوچھے تھے، ہم نے کہا آپ کچھ بتاؤ، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہوا ہے، کسی کو پتا چل رہا ہے کچھ نہیں، کیونکہ پتہ نہیں پلین گاڑیوں میں لے کر گئے ہیں، رات کے 2 بجے لے کر گئے. پھر تھوڑی بہت اور خبر مل گئی. دیکھیں سنی سنائی ہے سارا کچھ. کوئی کہہ دے کہ جی جس ڈاکٹر نے ان کو دیکھا تھا ماشاءاللہ وہ بہت صحت مند لگ رہے تھے اور خوشگوار موڈ میں تھے. اب یہ ہمیں سنی سنائی باتیں پتہ چل رہی ہیں. ہم نے تو ان کو ملنا بالکل ضروری ہے. یہ تو بھول جائیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے اگر ملاقات نہیں ہوتی. لیکن سمجھ لیں آج اگر یہ ملاقات کرا دیتے ہیں، میری بہن جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عظمیٰ، اس نے یہی کہا ہم جب عمران خان کو ملیں گے وہ کیا بتائے گا کہ میری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو ڈاکٹر نہیں ہے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں میرے یہاں کچھ ہوا تھا. ان کو ڈیٹیلز تو نہیں پتا، نہ ان کے ہاتھ میں رپورٹ ہے نہ ہمارے ہاتھ میں رپورٹ ہے. اور عمران خان ڈاکٹر نہیں ہے کہ ان کو پتا چلے ان کو کیا ہوا ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ سن لیں. ہم نے پٹیشن ڈال لی ہے اس وقت پنڈی ہائی کورٹ میں، اور اس کے اندر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیکل رپورٹ مانگی گئی ہے. چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سلمان راجہ کو کیا کمٹ کیا تھا کہ آپ کی ہماری فیملی کو میڈیکل رپورٹ دی جائے گی. یہ جمعرات کی بات ہے. اس کے بعد ہمارے جو وکیل ہیں وہ اڈیالہ پہنچے، انہوں نے رپورٹ مانگی. کسی نے ان کو لفٹ بھی نہیں کروائی، کسی نے ان سے بات بھی نہیں کرنے کی زحمت کی. ایک جو خط تھا ایک گیٹ پہ نہیں لیا گیا، لائرز دوسرے گیٹ پہ پہنچے. ادھر سے یہ انہوں نے بہت احسان کیا کہ جو خط دیا تھا رپورٹ کے لیے وہ انہوں نے لے لیا، انہوں نے ان سے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن رپورٹ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ جو یہ انہوں نے میڈیا کے کسی بندے کو ہاتھ میں تو پکڑا دی لیکن فیملی کو نہیں پکڑا رہے. میڈم یہ بتائیے گا سینیٹر، اچھا سن لیں ایک سیکنڈ، مجھے بات ختم کرنے دینا. تو اس لیے اگر ملاقات کرواتے بھی ہیں، ہمیں اس وقت عمران خان کا میڈیکل چیک اپ چاہیے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ، کیونکہ ہم نے جو چیک کروایا ہے پیمس کے پاس وہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے جس چیز کی عمران خان کو ضرورت ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کریں. اور ہم نے کیونکہ چیک کروایا، ہمارے ڈاکٹرز نے چیک کروایا، انہوں نے کہا جی سب سے بہتر یہ ہوگا کہ الشفا میں یہ ایگزامینیشن بھی ہو اور ان کی ٹریٹمنٹ الشفا میں ہو اور وہاں ہی جاری رکھی جائے.
ये हमारा मुतालबा, हमारी पिटीशन जो हाई कोर्ट में डाली गई है उसमें भी है, और आज हमारा मुतालबा अडियाला के बाहर भी यही है। इसी चीज के लिए हम यहाँ बैठेंगे। नहीं, अच्छा ये बता दें, आप समझते हैं कि आपके बैठने से मुलाकात हो जाएगी? क्योंकि वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी 3 बजे तक बैठे रहे, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाके बैठे रहे, लेकिन क्या हुआ? तो क्या हम ना बैठे? हम बैठेंगे। धक्के मारे, डंडे मारे, पानी, हम तो बैठेंगे। और आप मुझे बताएं क्या करूं? जेल तो गए, क्या करें? आप हमें बताएं। हमने तो अपने भाई को, एक दिन ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो हालत कर रहे हैं इमरान खान के साथ, नाजायज, गैर कानूनी, सारा दिन ये हमें पता है कि वो कानून की जो मैनुअल की ये जो सारा दिन रिसर्च करते हैं उसके अंदर ये उनको पता है कि पॉलिटिकल बात इमरान खान नहीं कर सकता। ये नहीं पता जो बाकी सारे रूल्स हैं जो ये तोड़ रहे हैं, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इन सारों को जो जेल के कानून तोड़ रहे हैं, याद रखें इन सबको जेल मिलनी चाहिए। कोई नहीं कह सकेगा हमारी मजबूरी। मैडम ये बताइए, ये बता दीजिएगा कि डॉक्टर से मालूम था जी मैडम मिशाल यूसुफजई ने कहा कि आपको मालूम था इमरान खान के हेल्थ के बारे में, और आपने सुहेल अफरीदी को भी कहा कि धरना खत्म कर दे, मुझे मालूम है इमरान खान सब ठीक है। ये मिशाल यूसुफजई ने देखिए मेरी बात सुने। मैं इसलिए उसको डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि वो जिनकी भी डायरेक्शन के ऊपर उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि टीवी पे बैठ के झूठ बोलो, मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। वो अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान की खैर ख्वाह है, क्योंकि उसको टारगेट मिला हुआ है। असल में उसको टारगेट मिला हुआ है अलीमा खान को। उसका काम है सुबह शाम बैठ कर ये करना, और मरवत और उसको इकट्ठा जॉइंट टारगेट मिला हुआ है। वो बेचारी अपना काम कर रही है। याद रखें, इमरान खान ने हमेशा जेल से कहा था जाके उनको बताओ कि एजेंसियां तुम्हें इस्तेमाल करके आखिर में क्रश कर देंगी। अलीमा ये बता दीजिएगा कि डॉक्टर्स ने, एक सेकेंड, डॉक्टर्स मैंने अभी आपको दोबारा दोहरा देती हूँ कि हमें जब ये रिपोर्ट का पता चला है, यहाँ पे इधर पता चला है पिछले ट्यूसडे को, मैंने सबसे पहले ये सवाल नहीं पूछा था कि रिपोर्ट, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट आ गई है। मैंने कहा सबसे पहले बताओ ये लीक हुई कैसे? मैं आज भी यही पूछ रही हूँ, लीक कैसे हुई? ये लीक हुई कैसे? ये हमें तो 2.5 साल में आज तक सिवाय इस इंफॉर्मेशन के, जबकि कोई प्राइवेटली भी हमसे पूछवा लेते थे, होता है ना, प्लीज कोई पूछवा दे, कोई पता करवा दे, सिर्फ ये पता चलता था कि अल्लाह का शुक्र है सारी रिपोर्ट ठीक है। तो पूरी साबित कागजों की रिपोर्ट अगर लीक हुई है ना, अब तक 4-5 लोग जिनके हाथ से ये रिपोर्ट सिर्फ 3-4 लोगों के हाथ में होगी, अब तक उनको सस्पेंड हो जाना चाहिए था, बल्कि जेल में इन्होंने डाल देना था उनको। तो ये लीक इसका मतलब इन्होंने खुद की है, डिस्ट्रैक्शन के लिए की होगी। मैं तो तब से कह रही हूँ। और ना, और किसका कि मैंने कहा था सलमा, वो सुहेल अफरीदी, हाँ जी, कि धरना खत्म कर दें। आप सुहेल अफरीदी से पूछ लें, हमने ना, हमारा कोई ताल्लुक है जुमेरात की धरने का, सुहेल अफरीदी ने दिया था, उन्होंने फैसला बिल्कुल सलमान राजा ने रिबटल दे दी है। बता दें। बिल्कुल जी, मुतफिका फैसला था, किसी एक शख्स की माँ के ऊपर नहीं था, सब गुफ्तगू हुई थी, और उसके बाद ये हुआ था कि धरने को सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटिन्यू किया जाएगा। खत्म नहीं कर रहे थे, वहाँ से कंटिन्यू जो है वो सुबह किया जाएगा। ये सारी गलत खबरें हैं कि किसी ने डायरेक्शन दी थी, अलीमा आपा ने दी थी, या किसी और ने दी थी। और सुप्रीम कोर्ट से जवाब उठ के गए थे जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जब उठ के गए थे तो उसके बाद यही हुआ था कि जाकर केपी हाउस के अंदर तमाम लोगों को बुला के इस पर मुशावरत की जाएगी, सीनियर क़यादत को बुलाया जाएगा, और उसी को आपने देखा कि वहाँ मुशावरत हुई और उसके बाद उन्होंने दिया। महमूद अचकज़ई तो कह रहे थे, साहब ठीक है, उनका भी आपने वीडियो पे सुन लिया होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उनकी सेहत की, वो जो इस वक्त वो जो अपने असेंबली के अंदर बात करेंगे कि ये 8 फरवरी को, सारों का ये ख्याल है कि 8 फरवरी की से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश थी, ताकि आप 8 फरवरी से डिस्ट्रैक्ट करो हमें। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप सारा कौम मिल के अगर आज प्रेशर नहीं डालती, मैंने अगर हिसाब लगाएं 10 kg का वजन डालना है इस जाली हुकूमत के ऊपर, 10 kg का वजन तो डाल देना, तो हम ये कहेंगे कि चलो 2 kg का वजन जो है वो 8 फरवरी पे आप डालें, हम डालेंगे। हमारा जिनका वोट चोरी हुआ है, हमारा काम है डालना ना। हम अगर इन पे प्रेशर नहीं डालेंगे, ये हमारे साथ यही करेंगे, ना हमारी मुलाकातें हैं, ना इमरान खान की ट्रीटमेंट होगी। आप सारा पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर
इनके ऊपर पहले प्रेशर डाले। आप वोटर हैं, आप हमारा साथ दें। इमरान खान के ताकि मुलाकातें नहीं हमें चाहिए, हमें अभी फिलहाल इमरान खान की ट्रीटमेंट और हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। ये इलीगल, ये जो नाजायज कैद में उसको डाला हुआ है, ये जो अबडक्शन है, ये कैद नहीं है। ना हाई कोर्ट हमारा केस सुन रहा है। आगे चल के क्या होगा? आगे चल के क्या होगा? ये इसी तरह ही चलाते रहेंगे। हमने यहाँ 12 साल ये बैठ के नहीं करना। इमरान खान, पाकिस्तान की कौम को हम आज आपसे कहते हैं कि आपका फैसला होगा कि इमरान खान बाहर मैडम, कल सोहेल अफरीदी वज़ीर आज़म से मिले हैं। ये वो वज़ीर आज़म है जिनके बारे में इमरान खान देखिए, मेरे साथ इमरान खान की भी बात करें। अता तारड़ ने खान साहब के हवाले से कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, तहरीरी रजामंदी से वो मुझे सिर्फ एक चीज बता, इस पे आपका क्या इमरान खान की मुलाकात, ये खौफजदा इतने हैं, असल में ये इतने डरपोक लोग हैं, इतने खौफजदा हैं ना इमरान खान की। अब सिर्फ मुझे इनका खौफ का लेवल बताएं क्या है। इतने खौफजदा हैं कि ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात भी ना करो। सिर्फ ये वजह बता दें, अगर ये दिलेर आदमी होते, अगर ये कॉन्फिडेंट होते, अगर इनको किसी चीज का डर ना होता, तो आज इमरान खान को सारी दुनिया से मिलवा रहे होते। ठीक है, ये डरे हुए लोग, खौफजदा लोग इनके साथ नहीं है। ये थोड़ा सा टोला है, जाली मैंडेट के साथ आए हुए हैं, और ये डरपोक लोग हैं जो जुल्म करते हैं। हमेशा याद रखना, डरपोक इंसान जुल्म करता है, ये डरपोक लोग जो जुल्म कर रहे हैं। और इमरान खान जैसे इंसान के साथ एक मैंने इंटरव्यू देखा, वो कौन सी औरत है, क्या नाम है उसका, शराजी, जो बहुत रोई थी नवाज शरीफ की पेट गिरने पे। हाँ, और साथ मुशाहिद हुसैन का किसी ने क्लिप भेजा, उसके अंदर मुशाहिद हुसैन के मैं सुन रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि अर्दोगान ने पिछले साल ऑफर किया था कि इमरान खान टर्की आ जाए, ये मैंने सुना। तो अब ये दोनों की जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के अंदर, मैं आपको ये बता दूं, बहुत डरे हुए होंगे जो ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू आ रहा है, और वो पूछ रही है अच्छा उन्होंने कहा था, फिर वो आगे से कहते हैं देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक चीज एक्नॉलेज कर ली इसमें, उन्होंने कहा मईशत और दहशतगर्दी, ये दोनों चीजों के खराब है ना, उन्होंने ये कहा है। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान टर्की चले जाते हैं तो हमारी जो मईशत और दहशतगर्दी है ना, इसको भी तो ठीक करना है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान के तुर्की जाने से मईशत और दहशतगर्दी का क्या ताल्लुक? अच्छा, आज ये बता दें, कोयटा में जो हुआ क्या तुर्किया के, मैं तो आपको ये बता रही हूँ जो मैंने अभी क्लिप में सुना है सुबह को। ये हमें देखें, मैं आपको एक दफा क्लियर कर दूं, ना हमारे से राब्ते में ज्यादा से ज्यादा जो हमें खबर मिलती है वो असल में आप लोगों से ही मिलती है, हमारा अड्याला के अलावा आप लोगों। जब आप हमें सवाल पूछते हैं, आप जब सवाल पूछते हैं, मैं खास तौर पर इंतजार करती हूँ हमारे 4-5 रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट के, वो 4-5 सवालों से हमें अंदाजा होता है कि इस वक्त गवर्नमेंट की परेशानी क्या है। हम अपनी जिसको डॉट कनेक्शन करते हैं ना, वो कर लेते हैं। इमरान खान भी आज यहीं बैठेंगे। हाँ, बिल्कुल, इसलिए यहाँ बैठने में, क्योंकि देखो आगे जाके लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, ये आगे जाते हैं, इनको ट्रैप कर लेते हैं और लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं। बेहतर यह है कि ऐसी जगह हो जहाँ पे ये ट्रैप ना। ठीक है, ओके।